Okay. Some students are saying that there must be a question whose center should not be equal to 0, 0. The center should not be at origin. So, okay, we will do one question that is not from that exercise. This is 19.11, 19.11. So I am doing question number 7. I am doing question number 7. 19.11. This exercise. Question number 7. 16x square plus 4y square plus 64x minus 12y plus 57 is equal to 0. This is a quadratic equation in two variables. General quadratic equation, two variables. Number 1. Number 2. We will check, is there plus sign in between? X square and y square only, not all. X square and y square. If x square is positive and y square is also positive, so when x square and y square both are positive, it means it may be the equation of the circle or it may be the equation of the ellipse. Muhammad Sayyid Muhammad Hassan. It's 11:3. So okay. So first we check, this is the quadratic equation, general quadratic equation. X square and y square both are positive. It means it may be the equation of the ellipse or it may be the equation of the circle. Now, if the coefficient of x square and y square are same, it will be the equation of the circle. If the coefficients of x square and y square are different, positive but different, so this will be the equation of the ellipse. So they are different. This is 16, this is 4. So both are the different. Therefore, this is the equation of the ellipse. This is the equation of the ellipse. Okay. Now this is the general equation. 64x minus 12y is also there. Before that, in exercise 11.7, 11.9 we have done. Sorry, 19.9 we have done that the coefficients, there was no x and y. Now there are x and y square. So what we will do, 16x square, we will rearrange them, plus 64x plus 4y square minus 12y. 57 will be shifted on the other side, minus 57 minus 57. Muhammad Zubair. Now we will complete the square. This one and this one. We will complete the square by using the completing the square method. This is the square of 4x whole square. Now there we will do 2 times into 4x into something else, so that it will become 64x.
So 64x will be divided by 2 into 4x. So 64x will be divided by 2 into 4x. That means 8x. We will divide by 8x. Answer is 8. So we will write over there 8. And we will add 8 square. This is 4x whole square, 16x square. 2 into 4x into 8 will be 64x. Up to here, this is the same. This is addition. This had been added. So in the same way, we will do in this way also. Here also we will do. This is 2y whole square minus 2 times of 2y into what? So again, 12y is divided by 2 into 2, 4y. So we will get 3. So we will write over there 3. And we will add 3 square. So this is the addition. This is 2 into 2y into 3 will be 2 to 2 the 4, 4 3 the 12. This is up to here. 2y whole square will be 4y square. 2 into 2y plus 3 will be minus 12y. This is same. This is the addition. So that two things has been added. So that will be added on the other side also. That will be added on the other side also. There was minus 57 already there. We will add plus 8 whole square will be 64. And 3 whole square will be 9. Because these are the two additional numbers, they are added on the other side. Okay. Munib and Muhammad Umar Sindhi. So we have added over there. Now this will become 4x square plus 2 into 4x into 8 plus 8 square. This will become 4x plus 8 whole square. In the same way, plus this is 2y whole square minus 2 into 2y into 3 plus 3 whole square. This is again 2y minus 3 whole square because there is the minus sign. A square minus 2ab plus b square. So this is the square of 2y minus 3 whole square. 2y minus 3 whole square. And on the right side is minus 57 plus 64 plus 9. 7 plus 9 will be 16. 7 plus 9 will be minus 54, 57 plus 64 will be 7. 7 plus 9 will be 16. Okay, now we have to take 1 over there. There should be 1. We will take 1 over there. So we will divide by 16. 4x plus 8. 4x plus 8 whole square divided by 16. Plus 2y minus 3 whole square divided by 16 equal to 16 upon 16, 1. So we got 4x plus 8 whole square upon 16 plus 2y minus 3 whole square upon 16 equal to 1. तो एक कंडीशन हमने फुलफिल कर ली, इक्वल टू 1 कर लिया. अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं. दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था, x के साथ 1 होना चाहिए कोफिशिएंट, y के साथ भी 1 होना चाहिए कोफिशिएंट.
तो कैसे हो सकता है 1? इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूं, 4 इसमें से कॉमन ले लूं, इसमें से मैं 4 कॉमन लूंगा तो बाहर जाकर ये चौके स्क्वायर से बाहर निकलेगा, 16 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा? x। कॉमन लेने का मतलब 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो x बच जाएगा, इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा 2 हो जाएगा, अपॉन 16, होल अपॉन 16, ये हो जाएगा। प्लस इसमें भी मैंने कहा था y का 1 होना चाहिए कोएफिशिएंट, 2 बाहर लूंगा तो 2 जब कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर है। यहाँ 4 कॉमन लिया तो 16 हो गया, 2 कॉमन लिया 4 हो गया, अंदर बचा y, इसको डिवाइड किया 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो y आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया 3/2 आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर से बाहर आ गया तो उसका होल स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया, अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y माइनस 3/2 होल स्क्वायर अपॉन 4 is equal to 1. This is the standard equation. Okay. Now we'll find the center. We will find A, B, and C. 1 और 4 में से बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है, तो a square will be 4 and a will be equal to 2 plus minus 2. b square छोटा नंबर है, वो क्या है? 1 है, so b will be equal to plus minus 1. b will be equal to plus minus 1. a b हमें पता चल गया, अब हमें c निकालना है। तो c square will be a square minus b square, 4 minus 1 and c will be equal to plus minus root 3. ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, तीनों चीजों का पता चल गया। जस्ट एनीवन में मैसेज टू अहमद खान, ही मस्ट राइट आईडी। तो ए बी सी हमें पता चल गया, अब हमने सेंटर देखना है इसमें से। ये x प्लस 2, तो ये हमने बताया था x माइनस एच होना चाहिए, माइनस, तो अगर यहाँ माइनस लिखे तो ये -2 माइनस -2, तो सेंटर x कोऑर्डिनेट -2 हो गया और y कोऑर्डिनेट -3/2, तो 3/2 हो गया। तो इसका जो भी नंबर है, क्योंकि मैंने बताया था x माइनस एच होल स्क्वायर और y माइनस के होल स्क्वायर, तो h और k सेंटर होंगे, तो नेगेटिव साइन, तो अपोजिट साइन यहाँ कर दें, या +2 है तो -2 आ जाएगा, या -3/2 है तो +3/2 हो जाएगा। सो दीज आर द सेंटर्स। अब हमने मेजर एक्सिस, अब ये बड़ा नंबर a स्क्वायर 4 था, ये किसके नीचे था? y वाले के नीचे था, x वाले के नीचे? y वाले के नीचे था, तो मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगा। सेंटर पता चल गया, मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, ये भी पता चल गया। अब हमने वर्टिसेस निकालने हैं। अब ये y एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा, उसमें a की वैल्यू प्लस माइनस कर देंगे, x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा -2, और ये 3/2 था, इसमें हम प्लस माइनस a की वैल्यू करेंगे 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, -2 3/2 में प्लस कर दें
पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, प्लस कर दे हम 3/2 में, तो ये हो जाएगा 4 7/2। और अगर माइनस कर दे -2 एज इट रहेगा, इसमें 3/2 में से -2 कर दे तो -1/2 आ जाएगा। ये दो वर्टिसेस आ गए, -2 7/2 प्लस करने पर +2 किया तो 7/2 आ गया, 2 2s are 4 +3 7/2। और माइनस करने पर 3/2 -2 करने पर 2 2s are 4, 3 - 4 विल बी -1/2। ये आ गए, ये दो वर्टिसेस आ गए हमारे पास। एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा, क्योंकि अब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था, तो वाई कोऑर्डिनेट में इसके हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया +-2 ए की वैल्यू, प्लस करने पर ये आया, माइनस करने पर ये आया। इसी तरह फोसाई निकाल लेंगे हम। ये भी अलोंग एक्स वाई एक्सिस होगा, -2 एज इट इज रहेगा, और 3/2 में हम प्लस माइनस कर देंगे सी की वैल्यू √3 सॉरी। अब ये आप कैलकुलेटर से कर ले, -2 एज इट इज रहा। अब ये कैलकुलेटर से कर ले, एक दफा प्लस कर दे सी की वैल्यू √3 की, एक दफा माइनस कर दे करीब। तो ये अहमद खान को मैसेज किया किसी ने, तो मैसेज कर दे। ओके, तो ये इस तरह हमने, चलिए मैं करता हूं। 3/2 का मतलब 1.5। तो मैं आई एम जस्ट डूइंग द विद कैलकुलेटर। क्या करूंगा मैं, 3/2 1.5 प्लस रूट √3, ये हो जाएगा प्लस करने पर 3.232। और माइनस करने पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 1.5 माइनस √3 -2 -0.232। ये हमारे पास फोसाई है। तो दीज आर द फोसाई। +√3 किया तो उस पर क्या आ गया, -2, ये एज इट इज आया। 3/2 +√3 विल बी 3.232। और दूसरे में किया -2 3/2 -√3, तो वो हो गया -2, 0 पॉइंट -0 पॉइंट सॉरी -0 पॉइंट, दिस इज माइनस।
So this is the answer. Foci will become minus 2 comma 3.232 and minus 2 comma minus 0.232. These are the two foci. And these are the two vertices. Minus 2 comma 7 upon 2. 7 upon 2 means 3.5. And minus 2 comma minus 1 upon 2. Minus 1 upon 2 minus 0.5. तो ये हमारे पास वर्टिसेस और फोसाई आ गए. तो ये मैंने आपको बता दिया हाउ टू solve such type of question when there is center is not 0 0. So we will use the method of completing the square. We will use the method of completing the square when the centers are not 0 0. और वो इस किस्म की इक्वेशन बनेगी ax plus by plus c etc. उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स और वाई नहीं है. इसमें एक्स और वाई भी होंगे. तो फिर जब एक्स और वाई भी शामिल हो स्क्वायर के अलावा, इसका मतलब समझ जाए कि इसमें सेंटर 0 0 नहीं है. वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाले मिला लें, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाले मिला लें, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं और फिर एक्स स्क्वायर वाले का और वाई स्क्वायर वाले का स्क्वायर कंप्लीट कर लें. जैसे यहां मैंने किया, दोबारा मैं बता देता हूं, आपको कराता हूं. We had the question 16x square plus 4y square plus 64x minus 12y plus 57 equal to 0. तो हमने चेक किया कि x स्क्वायर y स्क्वायर पॉजिटिव है. इसका मतलब ये स्क्वायर या तो स्क्वायर की या तो इलिप्स की इक्वेशन है या सर्किल की. फिर देखेंगे हमने कोफिशिएंट. कोफिशिएंट अगर इनके इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो सर्किल की इक्वेशन है डेफिनेटली. अगर इक्वल नहीं है तो ये इलिप्स की इक्वेशन है. व्हेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. ओके. तो हमने देख लिया कि ये इसके कोशेंट इक्वल नहीं है. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दो इलिप्स की इक्वेशन और बीच में पॉजिटिव का साइन. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होने चाहिए और दोनों के कोफिशिएंट नॉन इक्वल होने चाहिए. तो वो इलिप्स की इक्वेशन हो जनरल फॉर्म में. हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. कैसे करेंगे? 16x स्क्वायर के साथ 64x लगा दिया, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाला टर्म लगा दी और कांस्टेंट को सब शिफ्ट कर दिया. फिर उसके बाद इसका आपने को कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया. ये 16x स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर है. 4x का होल स्क्वायर है. हमने a स्क्वायर प्लस, क्योंकि x माइनस h होल स्क्वायर अगर होता है तो उसमें x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर वाला फार्मूला होता है. तो हम इसमें हमने 4x का होल स्क्वायर इसको 2 टाइम्स 4x into what should be written over there so that it will become 64. तो वो कैसे करते हैं? 4x को 2 into 4x से डिवाइड कर दें, यानी 8x से डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया. तो 8 इसमें यहाँ लिख दिया तो ये 64 हो गया. और इसी 8 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया. ये हमने ऐड किया तो 8 का स्क्वायर हमने यहाँ भी ऐड कर दिया 64. फिर हमने क्या किया? दूसरे को कंप्लीट किया. ये 2y का होल स्क्वायर है. फिर ये माइनस का साइन 2 टाइम्स ऑफ 2y into what should be over there so that it will become 12y. तो 12y को 4y से 2 into 2y से डिवाइड कर दिया. 12y को 2 into 2y means 4y से. तो ये 3 आ गया. तो 3 का यहाँ 3 लिख दिया और 3 का होल स्क्वायर ऐड किया. तो उस तरफ भी 3 का होल स्क्वायर नहीं 9 ऐड कर. तो ये 9 भी हमने उस तरफ ऐड कर दिया. ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया 4x प्लस 8 का होल स्क्वायर. ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर. और उस तरफ सिंप्लीफाई किया 16 आ गया. अब हमने 16 से डिवाइड कर देना ताकि 1 आ जाए. इसको भी इसको भी इसको भी. तो ये 1 आ गया. और इस तरफ 116 अपॉन 16. ये पे एक कंडीशन कंप्लीट हो गई कि इक्वल टू 1 आ गया. दूसरी कंडीशन ये है कि हमने क्या करना है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो 4 इसके 4x है तो 4 कॉमन ले लेंगे. जब होल स्क्वायर से 4 कॉमन आएगा तो 16 आ जाएगा बाहर. अंदर इसको 4x से डिवाइड 4x को 4 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा. 8 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा.
इसी तरह यहाँ भी y 2y की जगह सिर्फ y होना चाहिए। तो कैसे होगा, इसको 2 को कॉमन लेंगे, जब 2 को कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे -3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4 कॉमन लिया तो 16 बाहर आ गया, 16 को 16 से कैंसिल किया 1 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लिया था, बाहर 4 आ गया, 4 को 16 से कैंसिल किया तो 4 आ गया, और इक्वल टू 1। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। क्या बनी कि इक्वल टू 1 है और x और y का कोफिशिएंट 1 1 है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे a b और c की वैल्यूज और सेंटर। अब हमने इसे क्या किया, a क्या बड़ा नंबर a स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर 4 आ गया, a प्लस माइनस 2 आ गया। छोटा नंबर b होगा, वो b स्क्वायर 1 आ गया, तो b इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब c की वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाया, तो c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो ये c की वैल्यू आ गई, ये c स्क्वायर की 3 आ गई, 4 माइनस 1, और c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। अब सेंटर हमारे पास ये आ गया, यहाँ जो भी h है माइनस h था, यहाँ x माइनस h था, तो सेंटर h था, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या था, h था। तो ये +2 है तो -2 हो गया, और ये -3/2 है y कोऑर्डिनेट, तो 3/2 हो गया। तो ये सेंटर हमारे पास आ गया -2, 3/2। एक चीज, दूसरी चीज, अब ये एक्सिस देखना है, ए स्क्वायर किसके नीचे था, y वाले के नीचे, तो मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो गया हमारे पास। ये दो चीजें पता चल गई तो हम फोसाई और वर्टिसेस निकाल सकते हैं। कि दो चीजें हमें पता ना हो तो हम फोसाई और वर्टिसेस नहीं निकाल सकते। ए बी और सी तो निकाल लिया हमने, लेकिन इसको पुट कैसे करना है, ये हम कैसे यूज करेंगे, तो फोसाई और वर्टिसेस निकालने के लिए तो हम ये, तो जब तक हमें ये पता ना हो सेंटर कहाँ है और मेजर मेजर एक्सिस कौन सा है, तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए हमने बता दिया, सेंटर ये है -2, 3/2, यानी जो भी यहाँ x के साथ नंबर हो उसके साथ उस साइन का उसका अपोजिट साइन लिख देंगे, y के साथ जो भी नंबर है कोऑर्डिनेट उसका अपोजिट साइन लिख देंगे, तो वो सेंटर हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारे पास बड़ा नंबर जो था 4 था, वो y के नीचे था, तो मेजर एक्सिस लॉन्ग y एक्सिस हो गया। अब हम वर्टिसेस निकाल लें, y एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट में हम a की वैल्यू प्लस माइनस करेंगे, और y कोऑर्डिनेट में एक c की वैल्यू प्लस माइनस करेंगे तो फोसाई आ जाएगा। तो वर्टिसेस निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखा -2, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास हमारे पास 3/2 था, उसमें a की वैल्यू प्लस -2 हम 3/2 में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा -2, और y कोऑर्डिनेट 3/2 में हम a की प्लस वैल्यू प्लस -2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3/2 प्लस -2 कर देंगे ये, तो प्लस करने पर 7/2 आ जाएगा, और माइनस करने पर -1/2 आ जाएगा। तो वर्टिसेस आ गए -2, 7/2, और -2, -1/2, ये वर्टिसेस आ गए। अब हमने क्या करना है, फोसाई निकालने, फोसाई में भी c की वैल्यू हम 3/2 में यानी x y कोऑर्डिनेट में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। c की वैल्यू y कोऑर्डिनेट में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फोसाई में। फोसाई में क्या हो जाएगा, फोसाई विल बी -2, 3/2 प्लस माइनस रूट 3, 3 -2, 3/2 प्लस माइनस रूट 3। तो प्लस माइनस रूट 3 हम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 एज इट इज रहा, तो प्लस -2, 3/2 में प्लस माइनस रूट 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करने पर 3.232 आ गया, और सब्ट्रैक्ट करने पर -0.232 आ गया। तो फोसाई विल बी -2, 3.232 एंड -2, -0.232, ये फोसाई आ गया।
और वर्टिसेस क्या आ गए, -2,7/2 दैट मीन 3.5 एंड -2, -1/2 दैट इज -0.5, ये आ गए। अब हम इसको ड्रॉ भी करते हैं, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, स्केच कर लेते हैं। ये बन रहा है हमारे पास along y एक्सिस, हमने इसको यूं बनाया। सेंटर हमारे पास ये माइनर एक्सिस होगा और ये मेजर एक्सिस होगा, ये हमारे पास सेंटर हो जाएगा। सेंटर क्या है, -2,3/2, ये सेंटर आ गया। और ये कौन आ गया, वासिफ है। ये सब फर्स्ट आ गया, वासिफ है। ये सेंटर हमने लिख दिया। यहाँ वर्टेक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ वर्टेक्स नेगेटिव होगा, यानी दूसरा वर्टेक्स होगा, यहाँ एफ होगा और यहाँ एफ डैश होगा, इतने ही फासले पर। ये वर्टिसेस है -2, 7/2, ये पॉजिटिव 7/2 ऊपर जाएगा और छोटा वाला -1/2 नीचे चला जाएगा। -2, 7/2 दैट मीन 3.5 और -2, -0.5, -2, -0.5, -2, 3.5। ये हमारे पास वर्टिसेस आ गए। फोसाई है -2, 3.235, -2, 3.235, 232 सॉरी, और एक ये हो गया -2, -0.232। देखिए नेगेटिव आ रहा है तो ये नीचे जाएगा, इसके सेंटर के, पॉजिटिव है ऊपर है। बड़ा नंबर, ये दोनों अगर नेगेटिव हो उसमें भी जो बड़ा नेगेटिव होगा वो नीचे जाएगा, छोटा नेगेटिव ऊपर रहेगा सेंटर से, ये याद रखिए। दोनों पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव ऊपर जाएगा, छोटा पॉजिटिव नीचे जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऊपर जाएगा, नेगेटिव नीचे आएगा। दोनों नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव नीचे जाएगा, छोटा नेगेटिव ऊपर। नेगेटिव में अपोजिट होता है, छोटा नेगेटिव बड़ा होता है। जैसे -2 और -3 है तो -2 इज ग्रेटर देन -3, तो -2 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे चला जाएगा। और पॉजिटिव 2 और 3 में 3 बड़ा बड़ा होता है, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, दोनों पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसकी स्केचिंग हो गई। सेंटर डाल दिया, उसके ऊपर फोकस, उसके ऊपर वर्टेक्स, नीचे सेंटर के नीचे फोकस, फोकस के नीचे वर्टेक्स, एक एफ डैश एक बी डैश। तो ये वाई एक्सिस पर था तो हमने वाई में बनाया, तो इसको स्केच कर लिया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अगर हमने बी और बी डैश भी बनाना है तो ये बी हो जाएगा पॉजिटिव साइड पे, ये बी होगा और ये हम बी डैश कर देंगे। ये फिर एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड होगी, बी की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड होगी। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सेंटर था -2, ये चूंकि वाई कोऑर्डिनेट में बाकी ऐड हुए तो बी की वैल्यू चूंकि एक्स एक्सिस पर है, एक्स कोऑर्डिनेट में +-1 करेंगे और
y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। तो -2 प्लस -1, तो प्लस करने पर -1, 3/2 होगा, और माइनस करने पर -3, 3/2 होगा। तो ये b -1 पॉजिटिव वाला राइट पे चला जाएगा, ये नेगेटिव -1 ये छोटा है, ये बड़ा है। मैंने कहा था नेगेटिव में जो भी नंबर छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा। तो ये -1, 3/2 हो जाएगा, और ये -3, 3/2 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट उतना ही रहा, ऊंचाई उसकी उतनी ही रही। x कोऑर्डिनेट में यहां से इस तरफ गया तो ये कम है, इस तरफ से आता है, छोटा है नंबर। तो ये हमारे पास b के अगर कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं तो ये हमने x कोऑर्डिनेट, जबकि ये हमने y कोऑर्डिनेट में ऐड सब्ट्रैक्ट किए थे फोकस और वर्टिसेस। फोकस और वर्टिसेस y कोऑर्डिनेट में आए हैं वर्टिकल में, और ये x कोऑर्डिनेट में जाएंगे। -2 में प्लस माइनस b की वैल्यू करेंगे हम, अगर b और b डैश की वैल्यू निकालनी है तो ये हमने आपको बता दिया। कुछ चीज पूछनी है तो इसमें पूछ ले बेटा, कुछ इसमें आपने पूछना है, बस इसमें ये है थोड़ा सा मुश्किल कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड यूज करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, वो उसमें अगर आपको आता है तो फिर ये आप इस किस्म के क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। और अगर वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आता तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, फिर ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। ये बेटा आप लोगों को मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं, ये एक्सरसाइज 11.19.11 है, इसमें इस किस्म के क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं। एक चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप एलएमएस के थ्रू लॉग इन हुआ करें, एलएमएस के थ्रू लॉग इन हुआ करें। अगर आप एलएमएस के थ्रू नहीं होते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब प्राइवेटली आप होते हैं तो पता भी नहीं चलता कि आप इस क्लास में हैं भी कि नहीं है। यानी मैंने तो खैर पहले दिन नोट कर लिया था और वह वो हो गया था कि ये इस क्लास के बच्चे हैं, लेकिन बाज औकात वो चेंज कर सकते हैं।